अब हम अगर बात करें हमारे मेजर दूसरे इम्पोर्टेंट टॉपिक की, तो हमने देखा था नेशनलिज्म में एक तरफ आपका proto nationalism, lesser defined sense of nationalism of the tribals, peasants, basically ये था आपका पॉपुलर। पॉपुलर इसीलिए क्योंकि कॉमन लोग अपना डिस्कंटेंट ऐसे एक्सप्रेस कर रहे थे, लेकिन साथ में एक और फिनोमिना था, क्योंकि द young people who were being educated in the Western paradigm in British colleges, in English schools later on, and then English colleges, and they were educated in the Western liberal paradigm, studying the sciences, studying rationality, uske baad studying subjects like English, mathematics, science. Their idea of looking at the world also was influenced by what they were studying. So even though the Britishers introduced English education in order to produce more loyal subjects and in order to make more efficient officers, उसकी वजह से एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो हुई वो था द राइज ऑफ द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म अमंग्स द एजुकेटेड क्लासेस। तो अब जो लोग वेस्टर्न एजुकेशन एक तरीके से like the students who are exposed to Western education, they do two things. First, they see that okay, the Western civilization is able to use scientific rationality so well, it is able to use it to sort of reform its institutions in order to make its institutions more accountable. वो गवर्नमेंट पे भी लगाते हैं, उनकी सोसाइटी में भी वो इक्वालिटी की बात करते हैं, नेचुरल राइट्स की बात करते हैं। ये सब इसीलिए क्योंकि वो रैशनैलिटी का मतलब है रीजन बेस्ड थिंकिंग। वो सुपरस्टिशन पे नहीं बिलीव करते, वो रिलीजियस सुपरस्टिशन से ऊपर उठ के वो रैशनैलिटी लगाते हैं, ह्यूमन डिग्निटी पे बिलीव करते हैं। और उनको भी लगता है कि हाँ ये सब तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक नॉर्मल इंसान की बेसिक डिग्निटी तो इधर से ही आती है, राइट से, रैशनैलिटी से। तो यहाँ पर what they do differently is they are they use those values and then they start questioning the British rule in India itself, इस सेंस में कि वो देखते हैं कि ये रैशनैलिटी अगर अच्छी चीज है, अगर आपको सबको इक्वल राइट्स देने चाहिए, देन वेयर इज दिस रैशनैलिटी व्हेन इट कम्स टू इंडिया? व्हाट आर द ब्रिटिशर्स डूइंग व्हेन इट कम्स टू इंडिया? उस केस में वो क्या करने की कोशिश करते हैं सबसे पहले, इसीलिए हम बोलते हैं कि मिडिल क्लास नेशनलिज्म का जो सबसे पहला विजिबल साइन है वो है सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स। उसके बाद जो, क्योंकि सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स में सबसे पहले तो हम लोग अगर देखें जस्ट सम कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चन, इस एरिया से आपके फिर भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। पर मिसकंसेप्शन क्या होता है? रोट लर्निंग जो नहीं करनी होती है, in the sense कि if you just keep remembering the names of the important leaders and different organizations, you will always be confused. Similarly, not structuring and trying to predict the PYQs incorrectly. तो देखो कई बार जैसे we keep coming back to this again and again, that if you get 15 to 16 questions from history, you don't have to answer all of them correctly. So for example, if in one particular year you find like names of some institutions that you did not know anything about, जैसे अगर हम बात करें तो अगर आपको पता है कि राधा कांत देव को आप या कृष्ण चंद्र सेन को आप, केशव चंद्र सेन को आप बस किसी कॉन्टेक्स्ट में ही जानते हो, कुछ छोटे से कॉन्टेक्स्ट में ही जानते हो, और आपको नहीं पता है कि ब्रह्मो समाज के आगे उन्होंने क्या क्या काम किया अपनी लाइफ टाइम,
और 2-3 ऑर्गेनाइजेशंस के नाम आपको नहीं पता है जो उनसे एसोसिएटेड है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यू स्टार्ट टू पिक all the leaders that exist in India in 19th 20th century and try to know about them extensively, in the sense ki you cannot remember everything about every important leader, especially when you, this is not the only subject that you have to study. History is one of the 19 areas that you have to study and pay attention to, और इस exam में भी there is so much more that you have to do. तो ऐसे case में it is wiser to leave one or two difficult questions and focus on the low hanging fruits. जो easy questions इस area से आते हैं, low hanging fruits, जो कि हम लोग कभी afford नहीं कर सकते गलत होने का, those are the things that we need to aim for. ठीक है? So those of you who are preparing your notes for the first time, prepare them very strategically. उसको बड़े अच्छे से define करिए, जिससे आपको exam में overwhelm की वजह से आपका answer गलत ना हो. ठीक है? अब अगर हम बात करें सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स में ही, द रीजन, अगर कंसेप्चुअली हम बात करें तो व्हाट वाज इट बेसिकली, इसको हम समझते हैं इम्पैक्ट वर्सेस रिएक्शन स्कीमा की तरह, कि कॉलोनियल रूल और कॉलोनियल मॉडर्निटी का इंपैक्ट हो रहा है इंडिया में, उसी के खिलाफ एक रिएक्शन निकल के आ रहा है प्राइमरीली आपके एजुकेटेड इंटेलेक्चुअल्स का. इसीलिए सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स में हम एजुकेटेड या मिडिल क्लास थिंकिंग की बात करते हैं. तो देखो, जब वो वेस्टर्न एजुकेशन, साइंस, रैशनैलिटी को यूज कर रहे हैं वेस्टर्न सोसाइटी की सुपीरियरिटी को क्वेश्चन करने के लिए, तो सबसे पहली चीज जो वेस्ट कहता है इंडिया के बारे में, इंडिया इज अ बैकवर्ड कंट्री और बैकवर्ड सिविलाइजेशन बिकॉज देयर इज नो ह्यूमन डिग्निटी, देयर इज नो बेसिक इक्वालिटी, women and men are not equal, there are caste based divisions, there are many primitive there are many primitive institutions that do not make any sense. तो वो लोग क्या करते हैं, इंडिया को इसी बेसिस पे क्रिटिसाइज करते हैं और बोलते हैं कि इंडिया को अभी टाइम लगेगा एजुकेट होने में, इस लायक बनने में कि वो सेल्फ गवर्नमेंट कैरी आउट कर पाए. तो सबसे पहले these सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स, हाउ आर दे लिंक्ड विद नेशनलिज्म, क्योंकि वो भी नेशनलिज्म का ही काम कर रहे हैं. As long as the country is divided on the basis of caste, on the basis of gender, on the basis of different identities, तब तक on the basis of religion also, तब तक आप कैसे एक nationalistic force बनाओगे? Because we know that for a nation to exist, people need to have a sense of common belonging, कि ये पूरा area, ये पूरी territory हमारी है. तो पहले तो नेशन बनाने के लिए सबसे पहले ये जरूरी है कि आप डिफरेंट लोगों को एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे लाओ, सभी पॉपुलेशन को, विच वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल अगर वो कुछ बेसिक रिफॉर्म्स की बात नहीं करते. तो जो पहला ट्रेंड यहां से निकल के आता है रिफॉर्मिज्म का, जो वेस्टर्न सोसाइटी को दिखाना चाहते हैं, बेसिकली वो वेस्ट के पास कोई रीजन नहीं देना चाहते हैं कि वो इंडियन सोसाइटी को क्रिटिसाइज करें इसके बाद कभी. तो वो क्या बोल रहे हैं कि हम लोग अपनी सोसाइटी के अंदर ये बदलाव लाएंगे, चेंजेस लाएंगे. इसी बेसिस पे अगर चाहे हम ब्रह्मो समाज की बात करें, हम राजा राम मोहन रॉय की बात करें, हम प्रार्थना समाज की बात करें, ये लोग क्या कर रहे हैं, वो इंडियन सोसाइटी और खासकर the reason that we call it socio-religious reform is because religion is very closely related to society in India. मतलब they are so intertwined कि आप दोनों के बीच में differentiate नहीं कर सकते. तो caste system is a social institution, वर्ना order is a social institution, but it is sanctioned by religion. वो इसी वजह से इतना strong है लोगों के दिमाग में. अब सती प्रथा की अगर हम बात करें तो it was a social evil, but it was sanctioned by some लिमिटेड इंटरप्रिटेशन ऑफ रिलीजन. तो इस तरीके से रिलीजन को रिफॉर्म करना है, रिलीजन का सेंस रिफॉर्म करना ज्यादा जरूरी है लोगों के दिमाग में ये सोशल इनइक्वालिटी खत्म करने के लिए. इस बेसिस पे दे टॉक अबाउट रिफॉर्म्स इन टर्म्स ऑफ विमेन, कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटीज, रिचुअलिज्म. जैसे क्योंकि अब हमारा जो ऑर्थोडॉक्स रिलीजन है वो बहुत ज्यादा रिचुअलिज्म की बात करता है, रिचुअलिज्म, कर्म कांड,
बहुत ट्रेडिशनल है। तो अगर आपको रिलीजन के बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं चाहिए सोसाइटी में, तो आप कोशिश करोगे कि पीपल इंटरप्रेट द रिलीजन ऑल्सो इन रैशनल मैनर। बहुत ज्यादा एक तरीके से ना, बहुत ज्यादा वो एकदम से पर्टिकुलर नहीं हो अपने रिलीजन के बारे में, जो हम कहते हैं डॉगमैटिक, डोगमा, किसी ट्रेडिशन को अनथिंकिंग तरीके से फॉलो करना, उसको डोगमा कहते हैं। तो ऐसा अप्रोच आप नहीं चाहोगे लोगों में। अगर लोग रैशनल होंगे तो अपने रिलीजन के बारे में भी थोड़े ओपन होंगे। तो रिफॉर्मिज्म इन सब तरह की चीजों की बात कर रहा है। पर इसका दूसरा जो रिस्पॉन्स हुआ, रिवाइवलिज्म, मतलब किसी चीज का पुनर्जागरण, किसी चीज को वापस जिंदा करना। तो अब रिवाइवलिज्म, इफ वी टॉक अबाउट रिवाइवलिज्म, सो देयर वर अ ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स हु tried to use British concepts only to reform Indian society, more than British concept, Western rationality to reform Indian society. There were also a group of scholars जिनको लगा कि इंडियन सोसाइटी में कोई इतनी बड़ी दिक्कत ही नहीं है। उन्होंने ब्रिटिश का क्रिटिसिज्म ही रिजेक्ट कर दिया कि आप बोल रहे हो इनइक्वालिटी है, लेकिन हमारे ओरिजिनल टेक्स्ट के अंदर इनइक्वालिटी नहीं है। हमारी ओरिजिनल सोसाइटी, हमारा कस्टम, हमारा ट्रेडिशन बहुत अच्छा है। आप इसको इस तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हो। तो उन्होंने क्या देखा, वेस्टर्न इंटरवेंशन को ही उन्होंने डिनाई कर दिया कि आप हमारी सोसाइटी में घुसने की कोशिश कर रहे हो, हम अपनी सोसाइटी की एंशिएंट ग्लोरी को रिस्टोर करेंगे। तो चाहे हम बात करें आपके हिंदू और इस्लामिक रिवाइवलिज्म दोनों, तो जैसे आर्य समाज, दयानंद सरस्वती का आर्य समाज बात करता था बैक टू द वेदास, क्योंकि वो मानते थे वेदास के अंदर इनइक्वालिटी नहीं थी, वेदास के अंदर कास्ट सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं था। मतलब सही में वैदिक टेक्स्ट, खासकर ऋग्वेद के टाइम तक, कास्ट सिस्टम और द वर्ना डिवाइडेड ऑर्डर वाज नॉट वेरी स्ट्रांग। तो उन्होंने क्या कोशिश की कि देखो, हम लोग हिंदुइज्म को सारे आपके polluted principles से, we will purge Hinduism of all these polluted principles. We will ensure that the original equality or the original egalitarianism that was present in the Vedas, that is restored. तो इस बेसिस पे हम कहते हैं कि आपका रिवाइवलिज्म, और ऐसा नहीं सिर्फ हिंदू, इस्लाम में भी, क्योंकि इस्लाम में भी देयर वर अ ग्रुप ऑफ मुस्लिम स्कॉलर्स जिनको लगता था कि जो इंडिया का इस्लाम है वो ओरिजिनल इस्लाम से बहुत दूर आ गया, बहुत करप्टेड हो गया है। तो अगर हम बात करें आपके वहाबी मूवमेंट से जो इंस्पायर्ड आपका वहाबी वलीउल्लाह, आपका वहाबी मूवमेंट से इंस्पायर्ड, और साथ में दरुल इस्लाम मूवमेंट, देवबंद स्कूल से रिलेटेड, ये सब भी यही बात करते हैं कि इस्लाम को अपने ओरिजिनल फॉर्म में रिस्टोर करने की जरूरत है। ठीक है, तो ये दोनों, अब हम लोग जब इस टॉपिक को पढ़ते हैं तो हम लोग को कैसे पढ़ना चाहिए, व्हाट शुड बी द अप्रोच? तो इट इज वेरी सिंपल। अपने दिमाग में दो कॉलम्स बना लो, रिफॉर्मिज्म और रिवाइवलिज्म, फर्स्ट राउंड में। ठीक है, अब रिफॉर्मिज्म में रीजन वाइज नोट करो, क्योंकि हम देखेंगे कि बंगाल, बॉम्बे या महाराष्ट्र, यहां पे मद्रास, ज्यादातर आपके प्रेसिडेंसी टाउन्स के पास क्यों कॉन्सेंट्रेटेड है ये सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट? क्योंकि ज्यादातर आपका एजुकेटेड इंटेलिजेंशिया भी तो इन टाउन्स, इन सिटीज, इन प्रेसिडेंसी टाउन्स में लोकेटेड है। आप रिफॉर्मिज्म में जो जो मेजर रिफॉर्मर्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन, उनसे रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेंड्स को रीजन वाइज डिवाइड करो। सिमिलरली रिवाइवलिज्म के लिए भी ऐसे करो, तो आपके दिमाग में एक पिक्चर बन जाएगी। अब इसके अंडर फिर जब आपका ये पूरा हो जाए तो ये बात करना, क्योंकि कोई नीट डिवीजन है, देखना मेन चीज है दैट दे आर फोकसिंग ऑन आर विमेन्स राइट्स, कास्ट बेस्ड रिफॉर्म्स एंड रिलीजियस, एक तरीके से अगर हम ये बात करें तो
Basically they wanted sort of openness or to rejected religious dogma. एक सेकेंड के लिए, तो रिलीजियस रिफॉर्म्स, ठीक है. अब इसको नोट करने के बाद जब सेकेंड लेवल ऑफ एनालिसिस करना, तो अलग अलग इंस्टेंसेस है, क्योंकि देखो ऐसा नहीं है कि रिवाइवलिस्ट वुमेन्स राइट्स को रिजेक्ट कर रहे हैं, उनका तरीका अलग है. रिफॉर्मिज्म डज नॉट reject western civilization, it does not reject science or western education, but revivalism thinks कि हम women को right देंगे अपने religion की origin spirit को restore करके. हम लोग याद दिलाएंगे लोगों को कि हमारे scriptures, हमारी संस्कृति में भी औरतों को बराबर हिस्सा दिया गया है. तो ऐसा, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि पहले ये करने के बाद इन सारी चीजों को ऐसे हॉरिजॉन्टली ऑब्जर्व करके देखना, ठीक है. तो इफ वी नोटिस, आपके जैसे रीजंस में हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि जैसे नेशनलिज्म का जो रीजन है, द रीजन दैट दे आर एबल टू बी सो आर्टिकुलेट अबाउट देयर डिमांड्स वाज कि सबसे पहले तो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिफिकेशन एंड पॉलिटिकल अवेयरनेस आपके बेसिक नेशनलिज्म का ही फॉर्डर प्रोवाइड कर रहा है, पर पब्लिक प्रेस, एक मेन चीज दैट इज फीडिंग द सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स इज द अराइवल ऑफ प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया. तो पहली बार ये लोग क्यों इतने फेमस हो रहे हैं, क्योंकि वो वर्नैक्युलर लैंग्वेज में न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, जर्नल्स, पब्लिकेशंस का सहारा लेके लोगों तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं. सिंस दे आर राइटिंग इन वर्नैक्युलर लैंग्वेज, इसी वजह से नेशनलिज्म का की फीलिंग इज स्प्रेडिंग टू द मासेस आफ्टर द मिडल ऑफ 19th सेंचुरी. उसमें सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट को इसीलिए हम लोग मिडिल क्लास नेशनलिज्म के साथ क्लब करते हैं, क्योंकि इट इज लेइंग द ग्राउंड वर्क फॉर दैट, व्हाट वी विल ऑब्जर्व लेटर ऑन. तो अब अगर हम बात करें सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स एंड मॉडर्न नेशनलिज्म, तो अगेन आप अब रिफॉर्मिज्म में इन सबको इंडिविजुअली कोट करते जाओ. तो सबसे पहले अगर हम बंगाल की बात करें तो ब्रह्मो समाज दैट केम अप फ्रॉम द आत्मीय, सबसे पहले आत्मीय सभा सेटअप करी थी राजा राम मोहन रॉय ने. वही ग्रो करते करते ब्रह्मो सभा फिर फाइनली टुक द फॉर्म ऑफ ब्रह्मो समाज इन 18 मतलब टुक द फॉर्म ऑफ ब्रह्मो समाज लेटर ऑन. अब इसका जो मेन आइडिया था, रिजेक्टेड, देख रहे हो, रिलीजियस डोगमा, पॉलीथिज्म, आइडल वर्शिप, डिवाइन अवतार्स, इन सबको रिजेक्ट करके रैशनल इंटरप्रिटेशन, मोनोथिज्म. जैसे आप ये देखोगे कि गिफ्ट राजा राम मोहन रॉय ने एक पर्शियन मतलब कि उनका एक बहुत फेमस पर्शियन बुक है, गिफ्ट टू द गिफ्ट ऑफ द मोनोथिस्ट्स, तो तोहफत उल मुहावदिन और गिफ्ट ऑफ द मोनोथिस्ट. तो वो यही बोलते हैं कि देखो, चाहे इस्लाम की बात करें, चाहे हिंदुइज्म की बात करें, गॉड इज सुप्रीम एंड ही इज एंड इट इज और ही इज फॉर्मलेस. तो वो इसीलिए रिचुअलिज्म को खत्म करना चाहते हैं. साथ ही में वो वेस्टर्न, तो एक तरीके से वो ईस्टर्न सिविलाइजेशन को भी बहुत अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि उनको संस्कृत आती है, पर्शियन आती है, अरेबिक आती है, उनको बहुत सारी, इसको हम लोग कहते हैं एक तरीके से फिलोलॉजिस्ट, ही वाज अ लिंग्विस्ट ऑफ पार एक्सेलेंस. तो उनको इतनी सारी लैंग्वेजेस आती है, उन्होंने सारी ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ी, उन्होंने कुरान पढ़ा, उन्होंने भगवत गीता पढ़ा है. ही इज अ ग्रेट एडमायरर ऑफ ईस्टर्न लिटरेचर, बट एट द सेम टाइम ही रिकॉग्नाइजेस द मेरिट ऑफ साइंटिफिक थिंकिंग ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन. तो लोग चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हम वेस्ट से वो चीजें बोरो करें जो हमारी लाइफ में ऐड करेगी. तो इसी वजह से वो वेस्टर्न एजुकेशन, खासकर criticism of social practices like sati, child marriage, polygamy. तो देखिए, women's right was sati, child widow remarriage, और sati became a very major agenda in Bengal. तो इसी वजह से, and child marriage also. तो इसी वजह से हम देखते हैं कि he was very moderate in his interpretation of demands. अब ब्रह्मो समाज आफ्टर द डेथ ऑफ राजा राम मोहन राय इन 1833. अब मैं बोलती हूँ, आप लोग जहां भी अपने नोट्स बना रहे हो, ऑलवेज like although this will never be asked as a question, okay, separately, but हमारे दिमाग में ना ब्रॉड, अगर ब्रॉड क्रोनोलॉजिकल लेयर्स बन जाए कि राजा राम मोहन रॉय की अगर हम बात करते हैं तो ही डाइड इन 1833, एक माइलस्टोन है जिसको हम यूज कर सकते हैं अगर हमको कभी
क्वेश्चन एलिमिनेशन से भी सॉल्व करना पड़े. तो आई एम जस्ट सेइंग व्हाइल यू आर रीडिंग, जस्ट बी वेरी अलर्ट एंड like in whatever form you remember things the best, or you in whatever form you understand the best, बार बार पढ़ के भी कर सकते हो, मल्टीपल रिविजन के समय अपने आप को एक्टिवली थोड़ा सा याद दिला के भी कर सकते हो, कोई अलग से लिख के भी रख सकते हो, बट जस्ट बी माइंडफुल ऑफ दीज थिंग्स. तो राजा राम मोहन रॉय की डेथ के बाद ऑफ कोर्स देयर वाज नो क्लियर सक्सेसर एज सच. तो सभा को फाइनली रिवाइव किया आपके देवेंद्र नाथ टैगोर ने, द फादर ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर ने, इन 1842. वहां से उन्होंने अपना, उससे पहले उनकी तत्वबोधिनी सभा, उनकी ऑर्गेनाइजेशन को उन्होंने ब्रह्मो समाज से मर्ज किया. अगेन वो भी बहुत रिफॉर्मिस्ट थे अपने पर्सपेक्टिव में, और reforming Hinduism internally and opposing Christian missionaries externally. तो हिंदू रिफॉर्म, हिंदू रिलीजन का रिफॉर्म was their main agenda. लेकिन प्रॉब्लम तब से आने लगी जब केशव चंद्र सेन, another very famous social reformer, joined the समाज in 1858. तो वहां से उनका थोड़ा सा डायरेक्शन डिफरेंट आने लगा, क्योंकि वो ज्यादा रैडिकल थे अपने आइडियाज में कंपेयर टू देवेंद्र नाथ टैगोर, कि वो बहुत रैडिकली अपोज करना चाहते थे प्रैक्टिसेस को, और देवेंद्र नाथ टैगोर चाहते थे टेक द रूट ऑफ ग्रेजुअल रिफॉर्म, लोगों को कन्विंस करना. तो इसी वजह से जो पहला स्प्लिट आया उसमें आदि ब्रह्मो समाज, पहला स्प्लिट आया ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया अंडर केशव चंद्र सेन एंड आदि ब्रह्मो समाज इन 1866. आदि ब्रह्मो समाज was under देवेंद्र नाथ टैगोर. और इस केशव चंद्र सेन के ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया में भी एक और स्प्लिट आया इन 1878, क्योंकि a year before that he was a very radical opponent of child marriage. लेकिन उन्होंने अपनी माइनर बेटी की शादी राजा ऑफ कूच बिहार से कराई थी. तो उनके फॉलोअर्स वर नेचुरली वेरी वेरी they were very perturbed, they were very shocked at this. तो उसकी वजह से again a split happened, और साधारण ब्रह्मो समाज was an offshoot of ब्रह्मो समाज of India, केशव सेन वाला. तो साधारण ब्रह्मो समाज. अब हम लोगों को इस बार, आप बस एक बार ये फ्लो चार्ट बना लो, ठीक है. जब भी ब्रह्मो समाज की बात आए तो हमें पता है कि ओरिजिनल स्प्लिट हुआ था देवेंद्र नाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन के डिफरेंसेस की वजह से 1866 में. फिर 1878 में एक और स्प्लिट होके साधारण ब्रह्मो समाज भी निकला. उसमें दिक्कत थी केशव चंद्र सेन एंड हिज इनकंसिस्टेंसी विद हिज ओन आइडियोलॉजी. तो इससे ज्यादा, क्योंकि अगेन दिस इज अ मेजर ऑर्गेनाइजेशन, तो हम लोग थोड़ी चीजें देखते हैं, पर पहले इसका अपने दिमाग में एक इमेज, एक पिक्चर, जहां तक हो सके wherever possible try to use flow charts. ठीक है. तो इसके बाद राजा राम मोहन रॉय, अगेन वेरी फ्रीक्वेंटली टेस्टेड टॉपिक इन द प्रीलिम्स. तो इनके बारे में हमको ज्यादातर चीजें पता ही है. अगेन अ वेरी फेमस PYQ, he was given the title of Akbar by emperor, he was given the title of Raja by the emperor Akbar Shah the second. Akbar the second हम लोग इनको कहते हैं. तो बेसिकली उनको एक डेलीगेशन को लीड करने के लिए भेजना था लंदन, जहाँ पे मुगल एम्परर चाहता था कि उसकी पेंशन बढ़ाई जाए. तो एक तरीके से उनको थोड़ा सा उनको फेवर करने के लिए अकबर द सेकंड ने उन्हें ये टाइटल दिया था राजा का. उसके अलावा वी नो हिज मेजर पब्लिकेशंस, इंस्ट्रूमेंटल इन द फाउंडिंग ऑफ द हिंदू कॉलेज, एंटी सती कैंपेन को लीड करना 1829 में जो सती रेगुलेशन एक्ट पास हुआ अंडर विलियम बेंटिक, उसके लिए कैंपेन करने वाले द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर वाज राजा राम मोहन रॉय. उनकी पब्लिकेशंस का नाम तुफतुल मुहव्विदीन, प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस, मीरतुल अखबार, और मतलब उनके वीकलीज के नाम संवाद कौमुदी एंड मीरतुल अखबार, और his role in the establishment of the Vedanta college. ठीक है. तो ये सारी चीज आप मल्टीपल टाइम्स, एक बार इसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करोगे तो इनमें से मोस्ट चीजें आपके जहन में थोड़ा ज्यादा रह जाएंगी. ठीक है. तो
इसको आर्टिफिशियली याद करने से अच्छा है इसको मल्टीपल टाइम्स रीड करके रिवाइज करो, तो थोड़ी फेमिलियरिटी बन जाएगी और आपके सामने जब ऑप्शंस आएंगे तो आप एलिमिनेट कर पाओगे, ठीक है। अब हम अगर बात करें आपके, हाँ, जैसे उसके अलावा बंगाल में आफ्टर द ब्रह्मो समाज young Bengal movement led by Henry Vivian Derozio of the Hindu, he was a teacher at Hindu college in Bengal. It was a very very major reformist movement, Brahmo Samaj, young Bengal movement, but it was much more radical than Brahmo Samaj. Brahmo Samaj of India आप देख रहे हैं was trying to merge Indian and Western customs, पर ये बहुत Henry Vivian Derozio was of course very very radical in his approach. He was very यूरोपियनाइज्ड, ही वॉज वेरी एंग्लिसाइज्ड, तो उन्होंने बिल्कुल ही रिलीजन के सभी डोगमास को रिजेक्ट कर दिया. ही यूज्ड टू एनकरेज वाइन ड्रिंकिंग, ही यूज्ड टू एनकरेज ऑल द इंग्लिश एंड यूरोपियन हैबिट्स, बट ही वॉज ऑल्सो वेरी वेरी फेमस एज अ वेरी नोटेबल पोएट ऑफ बंगाल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है. तो जो भी चैलेंजिंग ऑफ सोसाइटल नॉर्म्स हम लोग जो प्रोग्रेसिव आइडियाज एसोसिएट करता है, आप वो सब इधर भी अप्लाई करेंगे, लेकिन ये ब्रह्मो समाज से इसलिए डिफरेंट है क्योंकि इट इज वेरी रैडिकल. सिमिलरली हम पहले बात करेंगे महाराष्ट्र में किस्सा शुरू होता है परमहंस मंडली से 1848 में, दादोबा पांडुरंग एंड मेहता जी दुर्गाराम. शुरुआत होती है इसकी सीक्रेट सोसाइटी से. अगेन its aims are very much the same, तो reforming Hindu religion and society, sharing ideological similarities with the मानव धर्म सभा. और सिमिलरली ये परमहंस मंडली ऐसा सीक्रेट सोसाइटीज का मतलब महाराष्ट्र में भी ग्राउंड बिल्ड हो रहा है धीरे धीरे. फाइनली व्हेन केशव चंद्र सेन एज द लीडर ऑफ ब्रह्मो समाज विजिट्स महाराष्ट्र, आफ्टर दैट in 1866 after that in 1867 a new organization by the name of प्रार्थना समाज is formed, जो कि परमहंस सभा का ही एक तरीके से इवॉल्व होते होते लोगों के अंदर अवेयरनेस फैल रहा है. फिर केशव चंद्र सेन की विजिट के बाद प्रार्थना समाज इज सॉर्ट ऑफ इंस्पायर्ड बाय द मॉडल ऑफ ब्रह्मो समाज, ठीक है. तो अगेन इट वाज बाय आत्माराम पांडुरंग विद द सपोर्ट ऑफ केशव चंद्र सेन. इसीलिए ब्रह्मो समाज में हम ऑलरेडी जानते हैं कि ब्रह्मो समाज ऑफ केशव चंद्र सेन वाज अ वेरी नोटेबल लीडर इन द ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया आफ्टर इट स्प्लिट, और उन्होंने ब्रह्मो समाज को अलग अलग पार्ट्स में फैलाने के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है. तो सिमिलरली अब यहाँ पे अगर हम एमजी रानाडे की बात करें, आरजी भंडारकर की बात करें, बीजी चंद्रवरकर की बात करें, तो ये सारे जो अब बाद में जाके आपके जो भी बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की बात करेंगे तब भी इनका जिक्र आएगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस के मॉडरेट लीडरशिप की भी बात करेंगे तब भी इनका जिक्र आएगा, क्योंकि ये वही मिडिल क्लास इंटेलेक्चुअल्स हैं जो कि एक तरीके से इस रैशनैलिटी की बात बहुत टाइम से कर रहे हैं, राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ सोशल रिलीजियस रिफॉर्म, ठीक है. तो अगर हम बात करें प्रार्थना समाज की, तो यहाँ पे हम लोगों को इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू, बस आप नोटेबल डिफरेंसेस नोट कीजिए, क्योंकि ऐसा कुछ डिफरेंस इन आइडियोलॉजी है नहीं. ऑल ऑफ देम वर्चुअली वांट अ मोर लिबरल रिलीजन, दे डोंट वांट अ वेरी डोगमेटिक रिचुअलिस्टिक रिलीजन. अपार्ट फ्रॉम दैट दे सपोर्ट विमेन्स एजुकेशन, which Brahmo Samaj also supports, widow remarriage and raising the marriage age for both genders. उसके बाद यहाँ पे डी.के. कर्वे फाउंडेड द विडो रीमैरिज मूवमेंट एंड एसोसिएशन. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. जैसे यहाँ पे आप ना बॉम्बे के जो यहाँ पे आप अपने नोट्स में जब रिफॉर्मिज्म की बात कर रहे हैं तो आप लीडर्स के नाम उनके कॉजेस से एसोसिएट कर सकते हैं. डी.के. कर्वे वाज वेरी फेमसली एसोसिएटेड विद द कॉज ऑफ विडो रीमैरिज मूवमेंट एंड ही फॉर्म्ड अ सेपरेट विडोज एसोसिएशन, ठीक है. सिमिलरली अब अगर हम बात करें बंगाल में, हाँ, अपार्ट फ्रॉम Henry Vivian Derozio, Ishwar Chandra Vidyasagar, also the principal of Sanskrit College, he was very very famous for supporting the passage of Widow Remarriage Act in 1856. He advocated for the education of women and he also served as a secretary of
Bethune School, established by J.D. Bethune for girls education. तो विमेन्स एजुकेशन, विडो रीमैरिज, हम लोग ये सारे कॉजेज ऑफ विमेन एम्पावरमेंट एसोसिएट करते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर से. ही वाज अ ग्रेट स्कॉलर ऑफ संस्कृत हिमसेल्फ एंड दैट इज व्हाई he also tried to open the admission to Sanskrit college to non Brahmins. तो ऐसा नहीं है कि अगर वो विडो रीमैरिज की बात करते हैं तो ही विल बी अगेंस्ट कास्ट बेस्ड रिफॉर्म्स और एनीथिंग. ऐसा नहीं है कि आपने अगर किसी एक स्कॉलर का नाम सिर्फ एक कॉन्टेक्स्ट में सुना है तो वो दूसरी चीजों पे काम नहीं कर रहा है. इसीलिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि आप सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स को ध्यान से समझो कि अगर हम बात कर रहे हैं 4-5 कॉजेस की, जैसे विडो रीमैरिज एंड विमेन्स एजुकेशन, रिजेक्शन ऑफ द वर्ना ऑर्डर या कास्ट बेस्ड रिफॉर्म, तो आप देखो रिफॉर्मिस्ट लोग इसको सपोर्ट करेंगे, वेस्टर्न एजुकेशन को. अब यहाँ पे मैं वेस्टर्न एजुकेशन भी बोलूं तो रिफॉर्मिस्ट लोग इसको सपोर्ट ही करेंगे कि वेस्टर्न सब्जेक्ट्स होने चाहिए, पढ़ने चाहिए. ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही इंडियन सब्जेक्ट्स को हटा दो, बट वेस्टर्न सब्जेक्ट्स पढ़ने चाहिए. बट अगर अब इन्हीं सेट ऑफ डिमांड्स को मैं किसी रिवाइवलिस्ट के साथ एसोसिएट करने की कोशिश करूं, जैसे दयानंद सरस्वती, तो ही विल नेवर कंप्लीटली रिजेक्ट द वर्ना ऑर्डर. जैसे उन्होंने भी कास्ट सिस्टम को, जैसे उन्होंने कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटी को रिजेक्ट किया, लेकिन उन्होंने यही साबित करने की कोशिश की कि अकॉर्डिंग टू द वेदास द वर्ना डिवाइडेड सोसाइटी और द वर्ना ऑर्डर वाज सपोज्ड टू बी एन ऑक्यूपेशनल डिवीजन. ठीक है, तो उन्होंने, अब अगर मैं यहाँ पे डाल दूंगी वेस्टर्न एजुकेशन, तो ये समझ होनी चाहिए कि ही ऑफ कोर्स डिड नॉट सपोर्ट वेस्टर्न एजुकेशन and he did not support the imposition of Western education in India. He rather wanted education to be only in the native languages, कि Indians अपने subjects को पढ़े, अपने religion को पढ़े. तो इस तरह की awareness ज़्यादा important है. Just because आपने किसी एक का नाम बस एक चीज़ के साथ सुना है, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप उसी इंसान को किसी और रिफॉर्म या किसी और कॉज के साथ एसोसिएटेड देखेंगे तो आप ऑटोमेटिकली उसको गलत अज्यूम कर लेंगे. यहाँ पे दिमाग लगाना होता है, अपनी अंडरस्टैंडिंग से डिराइव करना होता है. अब यहीं पे अगर हम लोग यहाँ के रिफॉर्मिज्म में भी, आप जैसे बाला शास्त्री जाम्बेकर, फादर ऑफ मराठी जर्नलिज्म, दिग्दर्शन उसका मराठी फेमस मराठी मंथली. सिमिलरली यहाँ पे गोपाल हरि देशमुख, जिसको लोक हितवादी एक बार आपसे आ चुका है. अब मैं वही बोल रही हूँ, अगर आपको उस टाइम पे नहीं भी पता था ये, तो आइडियली यू कुड हैव, मतलब पीपल डू नॉट fail prelims, or people do not miss the cut off by answering difficult questions wrong. जैसे उस साल बहुत सारे लोगों ने नहीं आंसर किया होगा, इस क्वेश्चन को छोड़ दिया होगा, तब भी वो क्वालिफाई कर गए होंगे. लेकिन अब हम क्या करते हैं, हम लोग कई बार गलत PYQs को अपना बेसिस बनाकर हम बहुत ज्यादा पढ़ने लगते हैं. हमें ये इस चीज के लिए रेडी होना होगा कि ये सारे PYQs हम चाह कर भी 100% कंट्रोल नहीं कर सकते. देयर माइट बी सम दैट वी डोंट नो, बट नाउ दैट इट हैज बीन आस्क्ड, हम लोग इनके बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं ताकि अगर आए तो हम एलिमिनेशन और इन सब चीजों से सॉल्व कर पाए. पर इसका मतलब ये नहीं है कि वी विल गो सर्चिंग फॉर द नेम्स ऑफ ऑल द लीडर्स हु हैव एग्जिस्टेड इन ऑल द पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड देन try to try to remember most things about them. अब अगर हम बात कर रहे हैं, हाँ, सिमिलरली जीजी अगरकर along with MG Ranade, also a very important moderate leader from Maharashtra, associated with trends of reformism. और रिफॉर्मिज्म मूवमेंट में जो महाराष्ट्र का जो सबसे इम्पोर्टेंट हम लोग ये देखते हैं बेसिकली कि रिफॉर्मिज्म का जो सबसे इम्पोर्टेंट ट्रेंड हम महाराष्ट्र में देखते हैं वो है आपका कास्ट बेस्ड रिफॉर्मिज्म पे. क्योंकि अगर हम बात करें आपके कास्ट बेस्ड रिफॉर्मिज्म की, तो ज्योतिबा फुले, द मोस्ट फेमस लीडर, established the सत्य शोधक समाज. तो ज्योतिबा फुले, he believed in the radical rejection of caste. वो आपके हिंदू रिवाइवलिस्ट से बहुत डिफरेंट है. वो ये मानते हैं कि इवन द, उन्होंने ही बात करा है कि
celebration of, he believes in the rewriting of history using Raja Bali as a symbol to काउंटर द ब्राह्मणिकल यूज ऑफ राम. तो उन्होंने रामायण को भी एक तरह से आर्यनाइजेशन, एक ब्राह्मणिकल अटेम्प्ट की तरह देखा है कि कैसे ब्राह्मण्स अपना कल्चर बाकी नेटिव्स इंडिजिनस लोगों पे इंपोज करते, इंक्लूडिंग द कास्ट सिस्टम. तो उन्होंने राजा बाली, जैसे बाली एंड सुग्रीव वाले, बाली को बोला कि वो पीसफुली लिविंग अपने खुद के, ही वाज द आइडियल किंग ऑफ दैट एरिया. उनके साथ गलत हुआ, फिर राम जी ने आके उनके ब्रदर के बिहाफ पे उनको अनफेयरली डिपोज किया. तो अकॉर्डिंग टू हिम एंड अकॉर्डिंग टू हिज इंटरप्रिटेशन उन्होंने इस तरह से हिस्ट्री को वापस से रीडिफाइन करने की कोशिश की है. सिमिलरली बी आर अम्बेडकर, वो आपके लेट 20th सेंचुरी में आते हैं महाराष्ट्र में, लेकिन हमें पता है कि उन्होंने एक तरीके से डिप्रेस्ड क्लास मूवमेंट में ही गेव इट अ न्यू लीज ऑफ लाइफ. ये हम सेकेंड हाफ द 19th सेंचुरी नहीं, अर्ली 20th सेंचुरी नेशनल मूवमेंट के साथ उनका जिक्र करते हैं. पर इस टाइम पे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, ईवी रामास्वामी नायकर इन चेन्नई, जिनको हम पेरियार, ही इज एसोसिएटेड विद द आदि द्रविड़ा मूवमेंट इन तमिलनाडु. और आदि द्रविड़ा मूवमेंट भी कास्ट बेस्ड इसीलिए क्योंकि वो भी एंटी ब्राह्मण, क्योंकि वो जो तमिलनाडु के नॉन ब्राह्मण्स का एक तरीके से इनिशिएटिव है और वो भी ब्राह्मण डोमिनेंस को रिजेक्ट करता है. तो जस्टिस पार्टी जो उन्होंने फॉर्म करी थी मद्रास में, दे आल्सो कंटेस्टेड द elections that happened because of the 1919 act. तो जस्टिस पार्टी was also started at his behest और वो हमेशा से एक नॉन ब्राह्मण पार्टी थी मद्रास में. सिमिलरली नारायण गुरु, he was the leader of the Ezhavas, local low caste population in Kerala. अब रिफॉर्मिज्म के अलावा अगर हम अलग रीजन वाइज में रिवाइवलिज्म की बात करें, रिफॉर्मिज्म में अगर हम मुस्लिम रिफॉर्म मूवमेंट्स की बात करें, तो इफ वी टेक रिफॉर्मिज्म, तो अगेन यूजिंग वेस्टर्न नॉलेज टू रीडिफाइन, इसमें हमने बात करी है. अब आपके, अगर हम लोग नॉर्मली बोले तो जैसे मॉडर्न एजुकेशन वेस्टर्न साइंसेस, सैयद अहमद खान एंड हिज मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल और कॉलेज, जो बाद में जाके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनता है. मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज इज एस्टैब्लिश्ड इन 1875. तो जो सर सैयद अहमद खान थे, आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 ब्रिटिशर्स ने ना ये हिंदू वर्सेस मुस्लिम का कार्ड बहुत प्ले करने का कोशिश किया. तो दे सॉर्ट ऑफ ब्लेम्ड द मुस्लिम्स फॉर द मुस्लिम एरिस्टोक्रेट्स फॉर द रिवोल्ट, क्योंकि बहादुर शाह जफर द सेकंड का पार्टिसिपेशन को उन्होंने देखा कि जो पहले इंडिया के मुस्लिम रूलिंग क्लास थी उसने ब्रिटिशर्स के खिलाफ इस डिसकंटेंट को फैलाया. तो दे बिकेम वेरी एंटागनिस्टिक टूवर्ड्स द मुस्लिम्स. एंटागनिस्टिक मतलब वो मुस्लिम्स को बहुत ही एक तरीके से बहुत डिस्क्रिमिनेटरी तरीके से देखने लगे, जानबूझ के उनको गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज में सप्रेस करने लगे, उनको साइड लाइन कर दिया. तो उस कॉन्टेक्स्ट में सर सैयद अहमद खान, बिकॉज ही वाज आल्सो एजुकेटेड इन द वेस्टर्न पैराडाइम, उसको लगा कि मुस्लिम पीपल आर नॉट एम्ब्रेसिंग वेस्टर्न एजुकेशन प्रॉपर्ली, इसीलिए ब्रिटिशर्स उनको कंसिडर नहीं करे. उनको लगा कि अगर मुस्लिम्स को अपना अपलिफ्टमेंट चाहिए तो उनको ब्रिटिशर्स को अपीज करने की कोशिश करनी चाहिए, उनके सब्जेक्ट्स पढ़ने चाहिए, इंग्लिश एजुकेशन अडॉप्ट करना चाहिए और फिर ब्रिटिशर से कंसेशंस मांगने चाहिए अपने फेवर में. तो उन्होंने इसी बेसिस पे बोला कि इस्लाम के अलावा मुस्लिम्स को मॉडर्न एजुकेशन, वेस्टर्न साइंसेस और इंग्लिश लैंग्वेज की भी जरूरत है. दिस वाज अ रिफॉर्मिस्ट ट्रेंड इन द इस्लामिक फोल्ड. पर इसके अलावा अगर हम रिवाइवलिज्म की बात करें, और हाँ रिफॉर्मिज्म में मद्रास की बात करें, तो द मोस्ट फेमस वाज थियोसॉफिकल सोसाइटी, जिसको हम एनी बेसेंट से मोस्ट famously associate करते हैं, but it was not formed in India. It was formed in 1875 in New York by Madam H.P. Blavatsky and M.S. Alcott. So the thing to notice is Annie Besant did not
was not the founding member. जैसे थियोसॉफिकल सोसाइटी को पॉपुलराइज उन्होंने किया, बट शी was not the founding member. Similarly विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन से सबसे ज्यादा एसोसिएटेड है, सबसे ज्यादा पॉपुलराइज किया, पर फाउंडर वो नहीं थे, फाउंडर उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस थे. तो सिमिलरली एनी बेसेंट was now not the founder. Initially न्यूयॉर्क में फाउंड हुआ, 1882 में मद्रास आया उसका हेडक्वार्टर, अद्यार मद्रास के पास शिफ्ट होकर. तो उनका भी था कि वो इंडियन फिलोसफी में उपनिषदिक थॉट, उपनिषदिक थॉट ब्रह्मांड और आत्मा के मिलन की बात करते हैं, वो रिचुअलिज्म की बात नहीं करते हैं. तो एक तरीके से ये भी रिलीजियस रिफॉर्म की बात कर रहा है, काफी ओपन एंडेड इंटरप्रिटेशन ऑफ रिलीजन की बात कर रहे हैं. अब अगर सिमिलरली हम लोग यहाँ पे रिवाइवलिज्म देखें, अगर हम यहाँ पे रिवाइवलिज्म की बात करें तो द मोस्ट प्रोमिनेंट ट्रेंड ऑफ रिवाइवलिज्म इन बंगाल फर्स्ट वाज द रामकृष्ण मूवमेंट. टेक्निकली हम इसको प्योर रिवाइवलिज्म नहीं मान सकते, क्योंकि रामकृष्ण मूवमेंट जो था, इसको रिवाइवलिज्म इसलिए कहते हो कि इन्होंने वेस्टर्न सिविलाइजेशन को रिजेक्ट किया. रामकृष्ण परमहंस वाज द प्रीस्ट ऑफ दक्षिणेश्वरी टेम्पल, काली टेम्पल इन कोलकाता. तो उन्होंने भक्ति और योग जैसे, ऐसा नहीं है कि उन्होंने रिलीजियस रिचुअलिज्म को प्रमोट किया, उन्होंने भी भक्ति योग मतलब इंडियन रिलीजन के ओपन एंडेड स्पिरिट को एक्सप्लोर करने की कोशिश की, हिंदुइज्म के ओपन एंडेड स्पिरिट को एक्सप्लोर करने की कोशिश की, जो कास्ट में नहीं मानता था, इनइक्वालिटी में नहीं मानते थे. लेकिन उन्होंने वेस्टर्न सिविलाइजेशन को बहुत ही radically reject किया, because they believe that western civilization had turned people into slaves. ये जो चाकरी का कॉन्सेप्ट है कि आप बेसिकली आप ये जो काम करो मॉडर्न जॉब्स को, वो चाकरी की तरह देखते थे, और देखते थे कि इंडियन सिविलाइजेशन जैसी पहले थी वहां से बहुत डीके कर गई है. तो वहां से ये री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिंदू मूवमेंट या हिंदू रिलीजन शुरू हुआ. स्वामी विवेकानंद took it to new levels by equating हिंदुइज्म को टॉलरेंस से इक्वेट करके, सर्विस टू मैनकाइंड से इक्वेट करके. बेसिकली स्वामी विवेकानंद took this movement to new heights. Okay, and 1893 का वर्ल्ड पार्लियामेंट एट शिकागो was one of his most famous appearances, जहां पर he sort of introduces West to the concept of Hinduism and how it is a very different religion. क्योंकि उस समय दुनिया में जो क्रिश्चियंस, देखो आप अगर आप क्रिश्चियनिटी भी देखो तो क्योंकि वो बाइबल एक डिफाइंड टाइम पे आई है, बाइबल के रूल्स बहुत स्ट्रिक्टली डिफाइंड है. बीच में मेडिवल यूरोप में इतनी ऑर्थोडॉक्स हो गई थी, मतलब वहां पे सारे प्रीस्ट है, उनके इतने सारे कस्टम्स हैं, उनके इतने सारे रूल्स हैं, करप्शन भी इसलिए ज्यादा बढ़ गया क्योंकि वो सब क्लियरली आइडेंटिफाइड है. तो ऐसा हुआ कि इस वजह से जो ब्रिटिशर्स आए थे वो लोग क्या करते थे कि इन्हीं सारी चीजों को बाकी रिलीजन्स में भी ढूंढने की कोशिश करते थे. तो वो बार बार कोशिश करते थे कि हिंदुइज्म को भी स्ट्रिक्टली एक टेक्स्ट से या एक स्क्रिप्चर से टाई कर दिया कि हाँ ये है इनकी होली बुक, इसमें जो लिखा है ये इनका रूल ऑफ लॉ है, ये लोग सब फॉलो करते हैं. अगर क्योंकि क्रिश्चियनिटी हो, इस्लाम हो, ये सारे जो सेक्ट्स आए हैं ये सब अस वर्सेस देम के कॉन्सेप्ट पे आए हैं, और उनका ऐसा होना भी वैलिड है क्योंकि वो जिस कॉन्टेक्स्ट में आया, जीसस को अपने टाइम पे परसिक्यूट किया गया, प्रॉफिट मोहम्मद को अपने टाइम पे परसिक्यूट किया गया, तो दे हैड टू फाइट इन ऑर्डर टू सर्वाइव. ओके, सो दे बिकेम वेरी स्ट्रिक्टली डिफाइंड कम्युनिटीज कि हम हैं, हम ये सारी चीजें फॉलो करते हैं, और वो एक्टिवली कोशिश करेंगे लोगों को अपने ट्रूथ के करीब लाने का, कि हम जैसे भगवान को देखते हैं आप भी वैसे भगवान को देखें, हमारा जो कंसेप्शन ऑफ भगवान है आप भी ऐसा देखें. तो इसीलिए दोनों, हम कहते हैं ना, दोनों कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग उनके धर्म को फॉलो करें. प्रोसिलिटाइजिंग का मतलब होता है कन्वर्ट करना ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन देयर वे, इन देयर ट्रूथ ऑफ लाइफ.
तो इस वजह से वो लोग मानते थे धर्म का मतलब ही है। लेकिन स्वामी विवेकानंद ने एक तरीके से दुनिया को इंट्रोड्यूस किया कि हिंदुइज्म इज नॉट जस्ट अ रिलीजन, इट इज अ कल्चर, इट इज अ फिलोसफी। या इसकी जो परिभाषा है, इसका जो रूप है, वो हमेशा से बहुत डिफरेंट रहा है। वी डू नॉट बिलीव इन मेकिंग पीपल अग्री टू वन कॉमन ट्रूथ, वी बिलीव दैट डिफरेंट आइडियाज एंड फिलोसफीज कैन को एग्जिस्ट। We have always welcomed diversity of thought, of philosophy, of practice. इसीलिए हिंदुइज्म में आप देखेंगे कि हिंदुइज्म was able to stand the test of time. इतने सारे लोग इंडिया में आए और पीसफुली इंटरमिंगल किए, क्योंकि ये आपके रिलीजन जैसा नहीं है। तो इस वजह से स्वामी विवेकानंद को परमहंस मिशन से ज्यादा इंपॉर्टेंटली एसोसिएट किया जाता है। तो रिवाइवलिज्म में बंगाल में रामकृष्ण मिशन के अलावा सबसे फेमस या सबसे क्लासिक एग्जांपल ऑफ रिवाइवलिज्म इज दयानंद सरस्वती का आर्य समाज, जहां पर उन्होंने बेसिकली नॉर्थ इंडिया में उन्होंने रीइंट्रोड्यूस करने की कोशिश की वैदिक प्रिंसिपल्स रिजेक्टिंग वेस्टर्न रिफॉर्म्स। तो ही गेव द स्लोगन बैक टू द वेदास, हिंदुइज्म को उसके ओरिजिनल फॉर्म पे ले जाओ, ठीक है। और इसी को इंस्पायर करके उसके फॉलोअर्स ने बाद में आप नॉर्थ इंडिया में देखेंगे जो कम्युनल कैंपेन्स होते थे, जो शुद्धि कैंपेन रिकन्वर्जन के लिए, चाहे क्रिश्चियन मिशनरीज का हो, बाद में जाके चाहे क्रिश्चियन मिशनरीज के कन्वर्जन्स को अंडू करने के लिए जो शुद्धि कैंपेन्स, या इस्लामिक कन्वर्जन्स को अंडू करने के लिए जो शुद्धि कैंपेन्स चलाए गए, वो इन्हीं से इंस्पायर्ड होकर चलाए गए। एंड इवन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन ही बिलीव दैट इंडियन सब्जेक्ट्स को इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए, प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। तो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ गुरुकुल्स, वेरी फेमसली जो आप डीएवी आज देखते हैं, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल, वो एस्टैब्लिश हुआ था उनके फॉलोअर्स द्वारा ही, जिसमें लाला लाजपत राय, वही लाला लाजपत राय जो पंजाब के शेरे पंजाब लाला लाजपत राय वाज आल्सो क्लोजली इन्वॉल्वड इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द डीएवी स्कूल इन लाहौर इन 1886। सिमिलरली गुरुकुल यूनिवर्सिटी, तो अब इसमें हम लोगों को बस ये कुछ कुछ चीजों से फैमिलियर रखना है कि अब भले ही आपको एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम आपको ये सारे नाम याद ना हो, लेकिन आर्य समाज, इट्स बेसिक प्रीसेप्ट, उसका इफेक्ट ऑन एजुकेशन, कौन से इंस्टीट्यूशंस को आप इनसे एसोसिएट करते हो, इनको आप अपने नोट्स में लिख के रखो। और इसी तरीके से अगर हम देखें, बहुत सारे अलग अलग मतलब ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको आप बेसिकली अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हो। धर्म सभा इसीलिए, क्योंकि धर्म सभा फाउंडेड 18 राधाकांत देवी इसलिए फेमस हो जाता है क्योंकि ये उस समय सती अबॉलिशन कैंपेन को अपोज कर रहे थे। जैसे राजा राम मोहन रॉय के साथ एग्जिस्ट करते थे, राधाकांत देव के हिसाब से सती अबॉलिशन वाज वेरी एंटी कल्चरल। तो राजा राम मोहन रॉय के रिफॉर्मिस्ट एफर्ट्स को अपोज करने के लिए दिस बिकम्स अ वेरी फेमस ऑर्गेनाइजेशन। उसके अलावा अगर हम रिवाइवलिज्म की बात करें तो इस्लामिक रिफॉर्म मूवमेंट्स में आपका वलीउल्लाह मूवमेंट, जिसका हमने जिक्र किया, क्योंकि ये सऊदी अरेबिया में एक वहाबी सेक्ट आया था। वहाबी मूवमेंट, वहाबी का मतलब ही होता है कि इस्लाम को प्यूरिफाई करना, क्योंकि इस्लाम के अंदर जो करप्शन आ गया उसको ठीक करके प्यूरिफाई करना। इसका जो अब्दुल वहाब ऑफ अरेबिया, तो इसका जो ओरिजिन था वो आउटसाइड ऑफ इंडिया लाई करता था। लेकिन यहाँ पर हम लोग जिनको करते हैं शाह अब्दुल अजीज, शाह अहमद राय बरेलवी, और वेरी इंटेलिजेंटली अगर आपको याद हो अपने पेजेंट मूवमेंट्स में ऐसे ही क्रॉस रिविजन करते रहो, तो तीतू मीर का जो रिवोल्ट था, तरीकाए मोहम्मदिया या नरकल बेड़िया अपराइजिंग, जो जिसका जिक्र हम 1780s के बाद करते हैं, तीतू मीर का जो रिवोल्ट था बंगाल में, वो भी इसी वलीउल्लाह मूवमेंट या मतलब आपके अहमद राय बरेलवी से इंस्पायर्ड था, वहाबी स्कूल और डॉक्ट्रिन से इंस्पायर्ड था, जो कि चाहता था कि इस्लाम को देखो आप प्यूरिफाई करो। वो ब्रिटिश रूल को दरुल हर्ब का मतलब होता है लैंड ऑफ नॉन बिलीवर्स, और वो लैंड ऑफ नॉन बिलीवर्स को दरुल इस्लाम यानी लैंड ऑफ बिलीवर्स में कन्वर्ट करना चाहते थे। तो काफी मिलिटेंट थे अपने पर्सपेक्टिव में, बहुत रेडिकल थे और इंस्पायर्ड थे सऊदी अरेबिया के वहाबी डॉक्ट्रिन से। तो
बस हमें इसके बारे में ये बेसिक कंसेप्शन रखना है। उसी की जगह जो देवबंद स्कूल था वो भी रिफॉर्म, वो भी चाहता है कि इस्लाम को प्यूरिफाई किया जाए, पर वो एजुकेशन के थ्रू करना चाहता है, वो मिलिटेंसी के थ्रू नहीं करना चाहता। तो ये वहाबी स्कूल से थोड़ा कम ऑर्थोडॉक्स हुआ, थोड़ा कम मिलिटेंट हुआ। इसीलिए हम बोलते हैं कि प्रमोटिंग प्योर कुरानिक टीचिंग्स थ्रू एजुकेशन, उसके थ्रू वो इंडिया को इंडिया में इस्लाम को थोड़ा रिफॉर्म करना, मतलब बेसिकली इस्लाम के ओरिजिनल स्पिरिट पे वापस जाना चाहता है। दिस इज वेरी नोटेबल बिकॉज इट इशूड अ फतवा अगेंस्ट द रिफॉर्मिज्म ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट अंडर सर सैयद अहमद खान। देवबंद स्कूल ने सर सैयद अहमद खान को बहुत अपोज किया, क्योंकि उनका जो आइडिया था ऑफ बेटरमेंट ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी, उसमें वो वेस्टर्न एजुकेशन पे बहुत रिलाई करते थे, ब्रिटिशर्स पे बहुत रिलाई करते थे। तो इस सेंस में ये नोटेबल हो जाता है। आप लोग अपने नोट्स में यही जो मेजर क्रक्स है, यू मस्ट हैव योर ओन शॉर्ट नोट्स। जितना भी आप ये लेक्चर्स देख रहे हैं, जो मटेरियल आपको मिलता है उसके अलावा आप अपने शॉर्ट नोट्स जरूर बनाएं। वो आपके वर्ड्स आपकी हैंड राइटिंग में होने चाहिए, उसमें आपके आइडियाज का क्रक्स होना चाहिए। जितना हो सके आप अपना रिवीजन बुक से शिफ्ट करके नोट्स पे जाइए, क्योंकि तब आपके आइडियाज ज्यादा अच्छे से चर्न होते हैं। मेजर क्रक्स ऑफ द आइडिया को नोट करिए कि मेजर क्रक्स क्या है। देवबंद स्कूल बेसिकली चाहता क्या था, प्यूरिफिकेशन ऑफ इस्लाम। मेजर क्रक्स एजुकेशन के थ्रू, इन सब्जेक्ट्स के थ्रू, इंपॉर्टेंट लीडर्स और डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स को याद रखने की कोशिश कीजिए। बार बार ये कोशिश कीजिए कि इनमें से कौन से लोग साथ में को एग्जिस्ट कर रहे हैं, कौन से किसके बाद एग्जिस्ट कर रहे हैं। जैसे गुलामगिरी अगर कंपोज हुए 1873 में ज्योतिबा फूले से, सत्यशोधक समाज बना 1873 में, तो जैसे ऐसे क्वेश्चंस जो क्रोनोलॉजिकल अवेयरनेस को टेस्ट करते हैं वो आप आंसर कर पाएंगे। अब हर डेट कम से कम आपको पता है कि ये इससे पहले डेफिनेटली हुआ था, इसके बाद डेफिनेटली हुआ। आप पहले इस स्ट्रक्चर में अरेंज करें अपने नोट्स को ऐसे शॉर्ट फॉर्म में रखें, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करें, तो आप देखेंगे ये सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी। इनको याद करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। बस ज्यादा इंफॉर्मेशन जो आप चर्न नहीं कर पा रहे हैं उसको ऐसे डिसएग्रीगेटेड एक के बाद एक नहीं पढ़े। जो आपके स्कीम में फिट नहीं हो रहा है उसको किसी भी तरीके से अपने स्ट्रक्चर में फिट करने की कोशिश करें। तो अगर अब हम यहाँ इसके बेसिस पे PYQs देखें तो हमें ज्यादा अच्छा आइडिया मिल जाएगा। तो देखो, who among the following was associated with the secretary of Hindu female school which later be Bethune female school? अब ये इतना इजी और लो हैंगिंग फ्रूट है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऐसे क्वेश्चंस तो आप सही आंसर कर ही देंगे। और इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री द रकमाबाई केस ऑफ 1884 रिवॉल्व्ड अराउंड, हालांकि हम जब आगे जाके इसको बात करते हैं लेजिस्लेशन के टर्म्स में, तो हम जब प्रेस और आपके नए लाइन ऑफ मॉडरेट लीडरशिप की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि एज ऑफ कंसेंट एक्ट ब्रिटिशर्स जो लाए थे 1891 में, वो आया था इसी केस की वजह से। क्योंकि उस टाइम पर एज ऑफ कंसेंट बेसिकली 8 साल से बढ़ा के 12 साल पे करने की बात थी। और इसमें आपके BM मालाबारी, जो हम लोगों ने बात किया मॉडरेट लीडर, भी इस कैंपेन से एसोसिएटेड है। इंटरेस्टिंगली इनफ बाल गंगाधर तिलक इस कैंपेन के खिलाफ हैं बिकॉज ही फील्स दैट दिस इज एन इंक्रोचमेंट इन इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशन। पर अगर आप इस ऑप्शन को ध्यान से देखें, ठीक है, ये दोनों रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, क्योंकि जब रकमाबाई वाज जब वो शी वॉकड आउट ऑफ हर मैरिज, हर husband filed a case, her adult husband filed a case of restitution of conjugal rights। मतलब आप ऐसे शादी छोड़ के नहीं जा सकते, कोर्ट आपको मैंडेट करेगा कि आप वापस आए अपने पति के घर। तो जब उसने ये केस किया तो तब जाकर उसने ये बोला कि तब यहाँ से ये बात शुरू हुई कि व्हाट शुड बी द एज ऑफ कंसेंट, कि कम से कम प्यूबर्टी के बाद तो होना ही चाहिए। तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री। अब अगर आप लोग अपना थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो विमेन्स राइट टू गेन एजुकेशन, ये हम बात कर रहे हैं 1884 की। ये क्या प्राइमरी एजुकेशन, अभी इंडिया की ही एजुकेशन की हालत इतनी खस्ता है कि एजुकेशन इज नॉट इवन अवेलेबल टू ऑल द प्रोविंसेस एंड सिटीज एंड टाउन्स एंड विलेजेस इक्वली। मतलब अभी आप
नॉर्मल यूनिवर्सल एजुकेशन और राइट टू वुमेन्स एजुकेशन पे आने से पहले आपका एजुकेशन तो राइट बने पहले। तो ये आपको, अगर ये ऑप्शन आप इस बेसिस पे भी एलिमिनेट कर पाए कि दिस डज नॉट सूट दिस टाइम पीरियड, तो आपके पास और कोई ऑप्शन बचेगा ही नहीं। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आप देख रहे हैं हमें से दिमाग से सॉल्व करने की, ये कॉम्प्लीमेंट्री है, ये आपस में हुआ, जैसे 1891 में जो एज ऑफ कंसेंट एक्ट आया उसके साथ ये हुआ होगा। पर हाँ, मतलब एक तो सबसे पहले ये जो इन्फॉर्मेशन ली जाती है आपकी स्टैंडर्ड बुक से ही ली जाती है, जो कि जैसे अगर आपकी स्टैंडर्ड बुक्स जो कि मॉडर्न हिस्ट्री में बनाई हुई है उन्हीं में आपको ये इन्फॉर्मेशन जल्दी मिलेगी। पर उसके अलावा भी अगर हम देखें तो हम इसको बहुत इससे इजीली कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर हम बस अपना थोड़ा सा दिमाग लगा ले बाय एलिमिनेटिंग ऑप्शंस दैट सीम इनकरेक्ट राइट ऑन द फेस ऑफ इट, तो हमें हर चीज याद रखने की जरूरत नहीं है। अब ये वाला भी अगेन, देशेर कथा रिटन बाय सखाराम गणेश द्यूस्कर, स्वदेशी मूवमेंट के समय, क्योंकि उस समय बहुत सारा बंगाली लिटरेचर लिखा जा रहा था, ये बस सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट से रिलेटेड नहीं है, प्रेस या लिटरेचर से रिलेटेड है। पर इस क्वेश्चन में भी अगर आप ये देखें तो यूज ऑफ वर्ड देश बाय द्यूस्कर वाज इन द स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट ऑफ द रीजन ऑफ बंगाल। लेकिन अगर फ्रीडम स्ट्रगल में नेशनलिज्म, स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पे भी अगर भारत माता का कॉन्सेप्ट आ गया है, तो ये वाला ऑप्शन आपको बहुत नॉर्मली रिडक्टिव लगेगा। ऐसा लगेगा कि नहीं, ये दोनों तो सही है, क्योंकि सारे नेशनलिस्ट, सारे बंगाली राइटर्स इंक्लूडिंग बंकिम चंद्र चैटर्जी वर आल्सो एबल टू हाईलाइट दिस, कि वो इंडियन कल्चर के बारे में बात कर रहे हैं, ब्रिटिशर्स को मतलब ब्रिटिश और वेस्टर्न सिविलाइजेशन को रिजेक्ट कर रहे हैं। लेकिन ये थर्ड ऑप्शन अगर आप एलिमिनेट करते हैं तो आप ऑटोमेटिकली सही आंसर तक पहुंच जाएंगे। अब ये वही है, विट्ठल विध्वंसक गोपाल बाबा वालंकर, जब ये आया था 2020 में, अभी इन हाइंडसाइट हम लोग उनको पढ़ सकते हैं, लोकहितवादी उनके जर्नल का नाम, पर अल्टीमेटली हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को पूरी तरह कभी नहीं कंट्रोल कर पाएंगे। तो दिस शुड नॉट बी द मार्कर ऑफ योर प्रिपरेशन। हाँ, अब ये बहुत अच्छा, ये क्वेश्चन पूरी तरीके से आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड, जो मैं आपको बोल रही थी कि इंपॉर्टेंट जंक्चर्स को अपने दिमाग में मार्क करके रखिए। तो अब ये हमें पता है कि ये 1875 में हुआ। जब आपने इंडिगो रिवोल्ट रिवोल्ट पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि उसका जिक्र किया था इस प्लेन नील दर्पण में दीनबंधु मित्रा ने, जो 1860 में लिखा गया था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपनी आनंद मठ लिखी है 1882 के आसपास, ठीक है। उसमें अगर हम लोग उसके बाद अगर हम बात करें, सत्येंद्र नाथ टैगोर बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू सक्सीड इन द इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जाम, तो ये हुआ था 1863, ठीक है। तो अब हम इसी के बेसिस पे ये सारी चीजें एकदम इमीडिएटली एक दूसरे से रिलेटेड भी नहीं है, ये बस इस सेंस में कि शायद थोड़ा पहले थोड़ा बाद के सेंस में इसमें से अगर आप 3-4 ऑप्शंस में भी श्योर हो जाए, अगर आपको एग्जैक्ट डेट भी नहीं याद है कि चलो 1863 का 4 भी याद होता, तब भी आप सही आंसर पे पहुंच जाते, ठीक है। तो इसीलिए यूपीएससी आपसे एग्जैक्ट डेट्स नहीं पूछता, वो एक्सपेक्ट करता है कि आपको एक क्रोनोलॉजिकल अवेयरनेस हो। अब ये भी बहुत ज्यादा ही डिफिकल्ट सिचुएशन है, क्योंकि ये अब आप केशव चंद्र सेन के बारे में इतना जानते हो, दैट इज वेरी वेरी अनलाइकली। मैं आपको इसका सही आंसर बता सकती हूँ, मैं आपको 10 ऑर्गेनाइजेशंस का नाम भी दे सकती हूँ कि आप याद करें इस कौन कौन किस किस से रिलेटेड है, बट दैट वुड बी एस्केपिज्म ऑन माय पार्ट, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन फिर आपके पिछले 4-5 साल में कभी एग्जैक्टली ऐसे रिपीट नहीं हुआ। अगर होगा भी तो किसी डिफरेंट लीडर को देके होगा। तो हमारे पास कोई रीजन नहीं है कि हम इतनी गहराई में जाके पढ़े। अगर 1 या 2 क्वेश्चन हमें नहीं आते तो हम लोगों का हिस्ट्री में उसकी वजह से दीज आर क्वेश्चंस दैट यू आर नॉट सपोज टू नो वाली कैटेगरी में, ओके। हाँ, अब ये वाला क्वेश्चन, नाउ दिस इज द क्वेश्चन दैट यू कैन नॉट मिस एमिंग फॉर क्वेश्चंस लाइक दैट। लोग क्या करते हैं, उस क्वेश्चन पे पैनिक करते हैं, तो ये गलत करते हैं, ओके। हम लोग एनी बसंत के बारे में ये जानते हैं कि यस, शी वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वंस,
शी वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, पर वो इंडियन ओरिजिन में सरोजनी नायडू थी, लेकिन एनी बेसेंट वॉज द फर्स्ट नॉन, बट शी वॉज नॉट ऑफ इंडियन, शी वॉज ऑफ इंडियन डिसेंट, शी वॉज नॉट एन इंडियन. हमें ये पता है कि होम रूल लीग मूवमेंट में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट दोनों एसोसिएटेड थे, लेकिन ये भी हमें क्लियरली पता है कि शी वॉज नॉट द फाउंडर ऑफ द थियोसॉफिकल सोसाइटी. तो ये गया, ये गया. अब हम सही आंसर पे पहुंच सकते हैं. सो दिस इज द पॉइंट दैट वी ट्राई टू कन्वे विद दिस लेक्चर कि हमें सब कुछ नहीं पढ़ना है, हमें स्ट्रेटेजिकली पीवाईक्यू को देख के पढ़ना है. आपको अपने नोट्स को स्ट्रक्चर करना मस्ट है. जितना हो सके आप क्रॉस लिंकेजेस बनाने की कोशिश कीजिए. रिवीजन करिए आज पढ़ने के बाद एक बार कल, चाहे 10 मिनट. उसके बाद फिर रिवीजन का आपका इंटरवल होना चाहिए नेक्स्ट डे, मतलब 1 डे के इंटरवल में 15. उसके बाद उसका जो आपने उस हफ्ते पढ़ा है उसके लिए एक रिवीजन स्लॉट होना चाहिए एट द एंड ऑफ द वीक ऑन द फाइनल डे, 7th डे पे, कि मैंने ये पढ़ा है. और फिर उसके बाद एक रिवीजन होना चाहिए 21 डे पे. ठीक है. तो दिस इज व्हाट वी आर, दिस इज व्हाट विल हेल्प यू रिमेंबर. जो हम बोलते हैं ना हमें चीजें याद नहीं रहती, ऐसे चीजें याद होने के करीब आती है. ओके. डियर स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं.